مرکزی وزارت داخلہ نے آج لوک سبھا میں کشمیر سے متعلق مختلف امور پر جانکاری فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق پتھراؤ کے واقعات میں 5 اگست سے اب تک 765 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پیش ہے رپورٹ۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن مرکزی وزارت داخلہ نے جموں کشمیر کے مختلف امور کے تعلق سے جانکاری فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق 5 اگست سے اب تک کشمیر میں پتھراؤ کے واقعات میں 765 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس ضمن میں 190 کیس درج کیے گئے ہیں۔ ایل او سی پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا کہ 5 اگست سے اکتوبر 2019 تک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے 950 واقعات پیش آئے۔ ایم ایچ اے کے مطابق سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سیکیورٹی اہلکار مؤثر جواب دیتی ہے اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ وادی کی تعلیم صورتحال پر وزارت داخلہ نے کہا کہ 5 اگست کے بعد اسکولوں میں طلبہ کی حاضری کم تھی، تاہم دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ امتحانات میں طلبہ کی حاضری 99% رہی ہے۔ کشمیر کی سیاحتی سرگرمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران 34 لاکھ سیاحوں نے کشمیر کی سیر کی، جن میں 12,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاح شامل ہیں۔ اس دوران سیاحتی شعبے کو 25 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پاکستان سرحد پر سیز فائر معاہدے کی بار بار خلاف ورزی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر معاملے پر دنیا بھر میں الگ تھلگ پڑنے اور داخلی مسائل کی وجہ سے پاکستان سرحد پر مسلسل اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ پیش ہے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ رواں سال جنوری سے پاکستان نے 2700 سے بھی زیادہ مرتبہ ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ خاص کر 5 اگست کے بعد جب پارلیمنٹ نے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا، تب سے پاکستان کی اشتعال انگیز سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کر رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر مسئلے پر عالمی برادری کی حمایت نہ ملنے سے پاکستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا ہے اور وہاں کی معیشت کا بھی برا حال ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے لگاتار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان اس سمے ٹوٹلی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے اور پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پوری طرح چھوڑ دیا ہے، مسلم کنٹریز نے اس کو پوری طرح چھوڑ دیا ہے۔ چائنا جو اس کا سب سے بڑا الائی تھا، چائناز بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ یو این میں وہ گیا، ہیومن رائٹس گیا، کہیں بھی جہاں بھی گئے ان کو فٹکار پڑی۔ ابھی اس حالات میں اگر ہم ان کی اکانومی فیکٹر کو بھی کنسیڈریشن میں لے لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو اس سمے فضل الرحمان کا جو مارچ چلا تھا، عمران کی جو ستھتی ہے بہت ہی ڈاواڈول ہے۔ اس حالت میں پبلک کا اٹینشن ہٹانے کے لیے، میڈیا کا اٹینشن لانے کے لیے اور دیش کے واسیوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بار بار سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے۔ مدعا صرف ایک ہی ہے، تاکہ کشمیر کے اندر کوئی بڑی کانڈ جو ہے واردات انجام دے سکیں، جس سے ان کو نیشنل کنزمپشن کے لیے جو ان کی اپنی نیشنل گیلری ہے وہاں سے بھی شاباشی ملے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی یہ چیز وہ پوری طرح سے اچھال سکے۔ پاکستان کو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا اب یہ کیا کرے، کیوں؟ اب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو فوج کو اور اپنے جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ساری عمر ہمیں یہ سمجھاتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے پی او کے بھی چلا جائے گا ہندوستان میں۔ اب گورنمنٹ کیا ہے اور فوج کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بار بار سیز فائر کا النگھن کرتے ہیں۔ سیز فائر کے النگھن کی آڑ میں یہ ملٹنٹس کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو داخلی فرنٹ پر مزید چیلنجز کا سامنا رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں ایل او سی اور آئی بی پر دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمیں اپنا جو افیکٹو گریڈ ڈومینیشن ہے اس کو پوری طرح سے تیار رکھنا چاہیے۔ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کو ہم ایک ایجنسی کے اندر لے آئیں تاکہ سارے جو انٹیلیجنس کے آپ کے ایفرٹس ہیں وہ کمبائن ہو سکیں، ایریا پوری طرح سے ڈومینیٹ کر سکیں اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں
ताकि कोई भी मिलिटेंट किसी भी एरिया में, अभी बेसिकली 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा फोर्सेस लानी चाहिए और पूरी तरह से इफ़ेक्टिव डोमिनेशन एंड कंट्रोल जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल, मिलिटेंस इंटेलिजेंस ग्रेड और एरिया डोमिनेशन, ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं और ये जितनी जल्दी ये कर पाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारी सोच जो है वो ये है कि मिलिटेंट्स को हम वहीं रोक लें, मिलिटेंट को अंदर आने ना दें। उसके लिए हमारी स्मार्ट फेंसिंग जो आ रही है वो है, हमारे जो इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, हमारे जो ये जो डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, वो फ्रंट लाइन ट्रुप्स के पास हैं। हमारे जो उसके अलावा जो एक ऐसे सेंसर्स हमारे हैं, हमने लगाए हुए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में अब तक कई जवानों की शहादत हुई है, लेकिन फौज ने भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त दबाव में है। माहिरीन का कहना है कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के भी अच्छे नतायज आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा चंद महीनों में सरहद पर और कश्मीर में हालात मामूल पर आ जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लेह में वाक़े सियाचिन ग्लेशियर के शुमाली हिस्से में बर्फानी तोदे की जद में आकर 4 फौजी जवान और 2 पोर्टर हलाक हो गए हैं। वाक़े में एक जवान शदीद जख्मी हो गया है, जबकि एक जवान अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि ये जवान पेट्रोल टीम का हिस्सा थे जो सियाचिन ग्लेशियर के शुमाली हिस्से में 19,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात थे। इस बीच रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे 7 जवानों को बचाने में कामयाब हो गई। उन्हें नुब्रा वैली के मिलिट्री अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि वाकया कल सहपहर को पेश आया है। काबिल जिक्र है कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बुलंदी पर वाक़ मैदान जंग है। कोराकोरम रेंज में वाक़ सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई करीब 20,000 फुट है। यहाँ ठिठुरती सर्द हवाओं और नाकाबिल बर्दाश्त ठंड में फौजी जवान दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वादी कश्मीर का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने इस दौरान इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने LOC पर मुख्तलिफ यूनिटों का मुआयना किया। जनरल रणबीर सिंह ने इस मौके पर कामयाब कार्रवाइयों पर फौज की सताइश की। चिनार कोर कमांडर ढिल्लन भी उनके हमरा थे। जनरल रणबीर सिंह ने DGP दिलबाग सिंह से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलर चौक के करीब राजौरी से जुड़ी जम्मू पुंछ शाहराह पर एक IED को नाकारा बना दिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। आज सुबह आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने एक पॉलिथिन में ठोस शय पाई। उसके बाद फौज ने अलर्ट जारी करके शाहराह पर ट्रैफिक को रोका। उसके बाद आर्मी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ऑपरेशन लॉन्च करके IED को नाकारा बना दिया। उसके फौरन बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। अपनी पूरी टीमें बुला के, अपने डिफ्यूज़ल स्क्वाड बुला के उसको जो है नकारा किया। उसके बाद ये बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। आज 2.5-3 घंटे से ये पूरी रोड बंद थी और ये बड़ी बिजी रोड है। आर्मी हमारी जो सेना है उसने इसको नकारा किया। उसके बाद ही ये आमदोरफ़त दोबारा से शुरू हुई है। तो हम आर्मी की तारीफ़ करते हैं कि आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और आम लोगों की ज़िंदगी को बचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। सुबह से ट्रैफिक थी और आर्मी वालों ने ट्रैफिक खोला है और अच्छा काम किया। आर्मी वाले हमारे लिए जो भी काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है और आर्मी ने नकारा किया। बहुत बड़ा हादसा होने से बचाने की कोशिश की है। जम्मू पुंछ हाईवे के कल्लर के मुकाम पर आज सुबह आतंकियों ने एक IED लगाई थी जिसे फौज ने नाकारा किया। सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक गाड़ियों की आमोदराफत फौज द्वारा रोकी गई थी और तमाम गाड़ियां रोकने के बाद एक सर्च जो है वो फौज की तरफ से चलाया गया और उस सर्च के बाद ये पाया गया कि यहाँ पर IED जो है वो लगाई गई है जिसे फौज ने नाकारा किया है। उसके बाद भी फौज ने सर्च किया और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों की आमोदराफत को फिर से जम्मू पुंछ शाहराह पर बहाल किया गया। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज हंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा IGP कश्मीर, SP पानी, DIG सुलेमान चौधरी के अलावा SSP हंदवाड़ा,
आशीष मिश्रा भी मौजूद थे। डीजीपी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स हंदवाड़ा में एक पुलिस दरबार का इनेकाद किया, जिसमें जवानों ने अपने मसाइल डीजीपी के सामने रखे और डीजीपी उनको हल करने का यकीन दिलाया। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बांडीपुरा जिले में कल रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2 गिरफ्तारशुदा मिलिटेंट कमांडरों की जायदाद जब्त की। ज़राए के हवाले से मिली इतला के मुताबिक ईडी ने बांडीपुरा के अजस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार शुदा कमांडर तालिब हुसैन लाली की जायदाद जब्त की। वाज़ेह है, तालिब हुसैन लाली फोर्सेस के लिए मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर था और उसे 2012 में एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जानिब से इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान बांडीपुरा के पापाछन इलाके में भी हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद शफी शाह अलमारूफ डॉक्टर की जायदाद भी जब्त की। डॉक्टर को 2011 में फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे है। कश्मीर में हालात तेजी से मामूल की जानिब लौट रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे शाम 5 बजे तक खुले रहे। वहीं नए तालीमी साल के लिए स्कूलों में आज से क्लास वर्क का आगाज हो गया। वहीं कुछ स्कूली बसें भी सड़कों पर चलती नजर आई। तलबा को फिलहाल सादा लिबास में स्कूल आने के लिए कहा गया है। वहीं मिनी बसें और कमर्शियल तवेरा सड़कों पर मामूल के मुताबिक चलते नजर आए। वादी भर में प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट लगातार मुअत्तल है। उसकी वजह से आम लोगों को सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। राज्यसभा रुकन फयाज मीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना किया है। मकतूब में राज्यसभा रुकन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर में जमहूरियत बहाल की जाए। उन्होंने कश्मीर में शहरियों के बुनियादी हकूक़ की बहाली, तमाम महरूस सियासी लीडरान को रिहा करने के अलावा उन्होंने मांग की कि मकामी लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद अदम एतमाद के हवाले से उनसे बातचीत की जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने निजी स्कूलों को मुतनब्बे किया है कि अगर वो बस फीस को लेकर सरकारी ऑर्डर को लागू करने में नाकाम होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक नया हुक्म जारी करते हुए तमाम स्कूलों से कहा है कि उस मुद्दत की फीस तलबा से वसूल न की जाए जब तक तलबा को बसें फराहम नहीं की गई थी। डिवीजनल कमिश्नर का ये ऑर्डर न्यूज़ 18 उर्दू को मौसूल हुआ है। इस हुक्मनामे से इंतजामिया का उससे कबल दिया गया ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में बस फीस यानी ट्रांसपोर्टेशन फीस को लेकर पिछले 2 महीने से तनाज़ा चल रहा है। हालांकि सरकार ने पहले भी एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें साफ कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल बस फीस वसूल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। जो भी स्कूल इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ चलाई और कहीं 500 रुपये छोड़ दिए, कहीं 1 महीने की छूट कर दी। इसी को मद्देनज़र रख के अब सरकार की तरफ से दूसरा ऑर्डर आया है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी स्कूल इंतज़ामिया बस फीस नहीं ले सकती, नहीं वसूल कर सकती वालिदैन से तब तक जब तक उनकी बसें सड़कों पर नहीं चलती, यानी उनकी सर्विसेज जब तक जारी नहीं होती। न्यूज़ 18 उर्दू मुसलसल इस मामले पे लगा हुआ है पिछले 1.5 महीने से। पहली बार भी आपको याद होगा कि वो जो ऑर्डर था वो भी हमने ही मंजर आम पे लाया था। अब की बार जो नया ऑर्डर आया है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, मैं उनको भी सुनाना चाहूँगा जो स्कूल इंतज़ामिया है, इस पे साफ लिखा गया है, नो बस फी बी चार्ज फॉर द पीरियड स्कूल्स हैव नॉट ऑपरेटेड दीज बसेस टू कैरी द स्टूडेंट्स। एनी डिरेलिक्शन ऑन दिस अकाउंट बी परस्यूड स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स। ये कहा गया है कि जो इस हुक्म की, इस हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही है कि पिछली बार भी ऑर्डर आया था, पिछली बार भी एक हिदायत जारी की गई थी, अब की बार भी। अब एक्शन का वक्त है। अगर स्कूल इंतज़ामिया ये हुक्मनामा भी नहीं मानती है तब फिर ऑर्डर निकालने के बजाय अब एक्शन करनी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वालिदैन ने हुकूमत के इस ऑर्डर का खैर मकदम किया है, ताहम उनका मुतालबा है कि इस ऑर्डर पर सख्ती से अमल की जानी चाहिए। वालिदैन ने कहा कि स्कूलों ने पहले ही उनसे बस फीस वसूल कर ली है, अब उनका मुतालबा है कि वसूल शुदा फीस को स्कूल फीस में एडजस्ट किया जाए।
उन्होंने ले लिया हाफ पैसा तो ले लिया, बोला गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है हमें हाफ लेने का है। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहे वो फीस में फिर एडजस्टमेंट हो जाए, जो हमने भराया आधा पैसा। आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर निकले हैं, पहले एक ऑर्डर निकला था वो अक्सर स्कूलों ने नहीं माना? कहाँ चलता है ऑर्डर, तो चलता है नहीं, गवर्नमेंट निकलता है ऑर्डर कहाँ होता है? क्यों नहीं हुआ फिर? क्यों हमसे लिया गया? स्कूल वालों ने हमें फीस भी लिया है, बस फेयर भी लिया है, सब कुछ लिया है। मैं ही नहीं, सबसे लिया है। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। आप चाहती हैं कि सरकार इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराए? क्यों नहीं? हाँ, और क्या, ऑर्डर निकालने से नहीं चलेगा खाली? हाँ, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। खाली ऑर्डर मत है, वरना ऑर्डर तो ऑर्डर है ना, लेकिन ये स्कूल वाले नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए जो नहीं मानते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।